پاور سیکٹر کے میگا اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ سامنے لانے کے لیے کابینہ کی منظوری ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے پاور پلانٹس غیر منصفانہ منافع کمانے میں مصروف ہیں۔ 4 ارب 88 کروڑ روپے اضافی وصول کیے۔ رزاق داؤد اور ندیم بابر کے پاور پلانٹس بھی اربوں کا اضافی منافع کمانے میں ملوث۔ وزیر اعظم نے انکوائری رپورٹ پر کمیشن بنانے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان میں پھنسے پاکستانی نیاد برطانوی شہریوں کی واپسی پر ایم پی افضل خان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ۔ کہتے ہیں خالی جہازوں میں برطانیہ میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا جائے۔ برطانیہ میں ٹریننگ اور امتحانات کی غرض سے جانے والے اوورسیز پاکستانی بھی لاک ڈاؤن میں پھنس گئے۔ پاکستانی ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم ایسوسی ایشن آف فزیشین اینڈ سرجن یو کے ڈاکٹرز کی مدد میں مصروف۔ ماضی کی معروف اداکارہ اور تحریک مساوات کی سابق سربراہ مسرت شاہین بھی کرونا وائرس کی وجہ سے لندن میں پھنس گئیں۔ ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم اور آرمی چیف سے مدد کی درخواست۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانی شہری 28 اپریل کو قطر ایئر لائن کے ذریعے وطن واپس پہنچیں گے۔ سعودی عرب میں مقید اوورسیز پاکستانیوں نے بھی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت 27 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو نظر انداز نہ کرے۔ عالمی وبا کے باعث لاک ڈاؤنز اور سفری پابندیاں بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی سنی گئی۔ حکومت پاکستان نے فلائٹس اور دیگر ضروری معلومات پر مبنی ویب پورٹل بنا دیا۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری۔ برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ فضائی کمپنی کے مالک نے حکومت سے امدادی پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ ترکی میں تبلیغ، قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی امدادی سرگرمیاں، کارکن کورونا سے متاثرہ اوورسیز پاکستانیوں کی امداد اور دلجوئی میں مصروف۔ گھر گھر راشن کی تقسیم جاری۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں سکولز میں تدریسی عمل شروع کرنے کی تیاریاں۔ کورونا متاثرین کی مدد کے لیے حکومت امدادی پیکج کا اعلان آج کرے گی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ برطانوی شہریوں کے دلوں کی دھڑکن ملکہ الزبتھ آج اپنی 94ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا تانتا بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں رافع اوان۔ بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی ساتھی اینکر سیدہ اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹس کو برباد کرنے کے بعد کرونا وائرس نے امریکی خام تیل کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تاریخ میں پہلی بار WTI کی منفی ٹریڈنگ دیکھی گئی ہے۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں اٹھنے والے بھونچال کا احوال بتائیں گے اسی بلیٹن میں آپ کو۔ پہلے ذکر وزیر اعظم عمران خان کا، جنہوں نے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی لانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ڈنڈے پڑتے دیکھ کر دکھ ہوا۔ کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے، مگر 20 نکاتی لاہ عمل پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو نظر ثانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ وزرائے اعلیٰ سے مشاورت کر لی ہے، اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी लाने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दुनिया भर में लॉकडाउन के खात्मे की बातें हो रही हैं। उन मुल्कों ने जिधर अभी भी कई 500-600 लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने भी अब लॉकडाउन के अंदर फैसला किया है कि कमी लेके आए हैं। कई चीज़ें खोल दी हैं, दुकानें खोल दी हैं, आसानियाँ पैदा की हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें। वफाकी वजीर असद उमर और फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल ने कहा, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम वज़राए आला से मुशावरत कर ली गई है। मुझे खुशी है कि इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो गया। तमाम वज़राए आला ने भी उसकी अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है। ये पूरा निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल तक लेकर जाना है। हम बजाय इसके कि सारे मुल्क को लॉकडाउन करें, हम एक टारगेटेड स्मार्ट लॉकडाउन जिसके ज़रिए कुछ कारोबार ज़िंदगी भी चले, लेकिन जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं वहाँ हम एक मुनासिब सा लॉकडाउन या उसको रिस्ट्रिक्शंस की जाएँ। मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, लोगों को डंडे पड़ते देख कर दुख हुआ। किसी को मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकते, मगर 20 निकाती लाएअमल पर अमल दरामद ना किया गया तो नजर सानी पर मजबूर होंगे। मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने देखा कि हमारी पुलिस डंडों से मार रही है जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे। कई शहरों के अंदर 20 नुकात के ऊपर सारे उलमा ने साइन किया। अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने जहन में डाल लें कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल करना है, और अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, टाइगर फोर्स पर तनकीद बिला जवाज़ है। ये एक रज़ाकार फोर्स है। ये लोग खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं। मुझे अपनी ऑपोजिशन पे कई दफ़ा हैरत होती है, वो हर जगह समझते हैं कि कोई पैसा इन्वॉल्व है। ये रज़ाकार फोर्स है, ये पैसे नहीं, ये मुल्क में जज्बा रख के आए हैं ये लोग, ये हमारी मदद करेंगे। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने कहा, तोरखम से पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत से पाकिस्तानियों की वापसी भी चाहते हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने वालों के लिए कोई ममानियत नहीं है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने रवां माह ही बिजली के शोबे में पैकेज देने की खुशखबरी सुना दी। अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चीनी स्कैंडल पर नैब इंक्वायरी का मकसद करप्शन के सहूलतकारों को बचाना है। मुस्लिम लीग ने वीडियो लिंक की सूरत में कौमी असम्बली इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने आटे चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी नैब के सुपुर्द करने के हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लीगी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्जाम आयद किया, चीनी स्कैंडल पर नैब इंक्वायरी का मकसद करप्शन के सहूलतकारों को बचाना है। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमा चीनी कमीशन के सामने पेश होंगे। तो इस कमीशन का और नैब इंक्वायरी का मकसद भी सिर्फ एक है, जो इस करप्शन का सहूलतकार है, जिसने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ज़रूरत के 3 अरब की सब्सिडी दी और अपने मनपसंद लोगों को दी। खुर्रम दस्तगीर साहब और मैं कमीशन के सामने पेश होंगे और जिन हक़ाइक़ का मैंने भी जिक्र आपको किया है, ये कमीशन के सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो लिंक के जरिए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान करते हुए कहा, पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन के साथ मजाक है। क्राइसिस की आड़ में हम हुकूमत को अवाम के हक पर डाका डालने नहीं देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐसे किसी भी इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें कौमी असम्बली के मेंबरान की जो है वो फिजिकल प्रेजेंस ना हो। इस क्राइसिस की आड़ में हम हुकूमत को अवाम के आईनी हकूक पे डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत पार्लियामेंट को भी लॉकडाउन करना चाहती है। सरकारी दफातर खुले हैं तो पार्लियामेंट बंद नहीं हो सकती। हुकूमत की कोशिश है कि वो पार्लियामेंट को लॉकडाउन करे। हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली है, अगर सरकारी दफातर खुले हैं तो पार्लियामेंट बंद नहीं हो सकती। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, नैब ऑर्डिनेंस की मुद्दत पूरी हो चुकी है, हुकूमत इस ऑर्डिनेंस का तौसी चाहती है।
बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में फंसे हुए बरतानवी निजात पाकिस्तानी अपनी फैमिली से मिलने के लिए बेताब हैं। हुकूमत इस सिलसिले में फिलफौर इक़दाम करे। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ शख्सियात ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू के दौरान किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज के लिए कोई इकदाम नहीं किए। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म ने 2 साल का अरसा गुजर चुका है, बरतानिया का दौरा भी नहीं किया। मौजूदा हालात में जो पाकिस्तानी बरतानिया में बस रहे हैं उनकी फैमिलियाँ बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके जो ब्रिटिश पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो फंसे हुए हैं उनके लिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको खुसूसी प्रवाजों के जरिए बरतानिया वापस भेजा जाए। लास्ट 2 मंथ से हम ओवरसीज जो भी अमेरिका, यूरोप और बरतानिया में सब लोग हम लास्ट 2 मंथ से स्टक है। तो अभी तक हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी तरफ से कोई प्रॉपर लाला अमल नहीं अपनाया गया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज़ आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ कि ठीक है कि हम हर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जो आप कहेंगे हम करेंगे, लेकिन खुदारा हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ये जो सौतेली माँ जैसा सलूक है इसको भी ख़त्म किया जाए। जनाब इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर एंड ओवरसीज़ मिनिस्टर्स से मेरी दरख्वास्त है कि इस वक्त बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं प्लीज़ उनकी बर वक्त इमदाद की जाए, उनके लिए फ़्लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए। पाकिस्तानियों को आपका काम है, आप पाकिस्तानी अवाम को भी हेल्प करें। वो बड़े सख्त परेशानी में फंसे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की जो मईशियत के लिए हेल्प करते हैं वो $16-17 बिलियन एवरी ईयर। पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इज़ द बैकबोन फॉर पाकिस्तान। माजी की मारूफ फिल्म स्टार और तहरीक मसावात के साबिक सरबराह मुसर्रत शाहीन भी कोरोना वायरस के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने की वजह से फंस गईं। उन्होंने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि वो उन्हें दीगर फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम करें। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान से बात करते हुए मुसर्रत शाहीन का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग यहाँ पर स्टक हुए हैं और अभी खुशखबरी सुनी है कि यूके के एम्बेसडर ने अनाउंसमेंट की है टीवी पे कि नेक्स्ट वीक तक तमाम विजिटर्स को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मीडिया की, अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स की और तमाम दोस्तों की जिनकी दुआओं से हम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और अपने गवर्नमेंट की, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। तो दुआ कीजिए कि तमाम फ़्लाइट्स के ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, हम जल्द से जल्द पाकिस्तान आ सकें। स्टे होम, ताकि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैनचेस्टर से मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट और शेडो डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस मोहम्मद अफजल खान की कोशिशों से पाकिस्तान में फंसे ब्रिटिश पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स का आगाज़ कर दिया गया, जिस पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और PIA का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर से मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट और शेडो डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस मोहम्मद अफजल खान की कोशिशों से पाकिस्तान में फंसे ब्रिटिश पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर इनका कहना था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि बरतानिया से खाली परवाज़ों को ले जाने की बजाय यहाँ पर फंसे पाकिस्तानियों को मुल्क वापस भेजने के इक़दाम किए जाएँ। कोविड-19 कोरोना वायरस की मुश्किलात की वजह से हज़ारों के हिसाब से ब्रिटिश पाकिस्तानी पाकिस्तान में स्टक हुए थे। हमें खुशी है कि PIA ने कोई 7,500 से ज़्यादा लोगों को वापस बरतानिया में पहुँचा दिया है, लेकिन अभी भी 7-8 कम से कम वहाँ पे हैं जो आना चाहते हैं। 90 MPs ने साइन किया था लेटर, जिससे 10 चार्टर फ्लाइट्स भी अब आ रही हैं, ये कोई 2,500 के करीब होगा। तो हमें अब भी PIA की मदद की ज़रूरत है। तो आज मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो लेटर लिखा है उसमें ये गुजारिश की है कि ये जो प्राइसिंग है इसको ठीक किया जाए, और इसके साथ जो हमारे लोगों के पास ऑलरेडी टिकट हैं उन टिकट को भी एक्सेप्ट किया जाए, नए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसी की तरह एयरपोर्ट के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखा जाए। और फाइनली जो यहाँ से तैयारे वापस खाली जा रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से पाकिस्तानी हैं जो शायद स्टूडेंट हों या विजिट पे हों, हेल्थ के लिए आए हों, काम के लिए आए हों, वो भी वापस जाना चाहते हैं। और इसके अलावा जो ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पे आबाद हैं 1.5 मिलियन, इनकी भी गहरे ताल्लुक पाकिस्तान के साथ हैं, और कई हालात एमरजेंसी और मुश्किलात होती हैं जिसकी वजह से उनको एमरजेंसी जाना पड़ता है। यहाँ पे डेड बॉडीज हैं जो लोग वापस लेके जाना चाहते हैं, तो रिटर्न फ्लाइट में ये फैसिलिटी
फैसिलिटीज होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि जिन लोगों ने पहले टिकट खरीदे हुए हैं इन्हें टिकटों पर उनके सफर की इजाजत दी जाए। MP अब्दुल खान पाकिस्तान में फंसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बरतानिया वापसी के लिए मुसलसल आवाज उठाते रहे हैं। न सिर्फ वजीर आजम इमरान खान बल्कि बरतानवी हुकाम को भी खत लिखकर उनकी तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल करा चुके हैं। बरतानिया में ट्रेनिंग और इम्तहानात की गर्ज से वहाँ जाने वाले पाकिस्तानी यंग डॉक्टर्स लॉकडाउन के बायस फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मेडिकल UK उनकी मदद में पेश है। इस हवाले से बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी ने तंजीम के सदर डॉक्टर शकील पूरी के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू की है, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की बीमारी शुरू होने से पहले कुछ यंग डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से बरतानिया आए थे वापसी के, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से वो यहाँ जो उन्होंने अपने वहाँ से अखराजात लाए थे यहाँ जो पार्ट टाइम काम करके अपने अखराजात पूरे करते थे वो इस वक्त काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम है, उनके सरबराह डॉक्टर शकील पूरी। उनसे पूछते हैं कि वो उन डॉक्टरों की सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे यंग डॉक्टर्स यहाँ पे एग्जाम के लिए आए थे, प्लैब 2 का खास तौर पे। ये लोग फाइनेंशियली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर के लिए करके आए थे कि हमने एग्जाम देना है और वापस चले जाना है। अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट्स के बंद होने की वजह से और एग्जाम को पोस्टपोन होने की वजह से ये लोग अब यहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं। हमने एसोसिएशन ने फैसला किया है कि हम लोग इनकी पूरी हर तरह से असिस्टेंस करेंगे। विद इन द लास्ट 24 आवर्स हमें ओवर 60 डॉक्टर्स ने कांटेक्ट किया है और हमने इनकी अकोमोडेशन के लिए तकरीबन 11 प्लेसेस जो आइडेंटिफाई किए हैं। हम इनको फूड और बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए और इनकी मेंटल और मॉरल सपोर्ट के लिए हर वक्त हाजिर हैं। इनकी जॉब्स के मामला जो हैं उसके लिए भी हम असिस्ट कर रहे हैं और इनकी जो GMC के अंदर रजिस्ट्रेशन है उसको हम एक्सपीरियड करने के लिए भी। आपका क्या मैसेज है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और बाकी जो यहाँ हमारी कम्युनिटी है उनके लिए, बतौर डॉक्टर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में मेरा पैगाम ये है सबको कि हम अपने आप को सैनिटाइज करें, हाथों को और अपने जिस्म को। लेकिन ये एक मौका खास तौर पे है कि जिसमें हमें अपने दिलों को भी सैनिटाइज करना है, अपनी सोच को भी सैनिटाइज करना है। ये वक्त एक दूसरे को माफ करने का, अपनी फैमिली को इकट्ठा करने का और अपने कॉलीग्स की सपोर्ट। ये इनका कहना था कि जितने भी यंग डॉक्टर पाकिस्तान से आए हैं जिनका हमारे साथ रब्ता हो गया है, हम किसी भी सूरत में उनको लेट डाउन नहीं होने देंगे और उनकी फुल्ली सपोर्ट करेंगे। दूसरा, इन्होंने अपनी कम्युनिटी के नाम एक मैसेज दिया है कि स्टे होम एंड सेव लाइव्स। जी, बरतानिया में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। एक बरतानवी एयरलाइन तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। एयरलाइन के मालिक ने हुकूमत से 500 मिलियन पाउंड का बेल आउट पैकेज का मुतालबा कर दिया है। अगर हुकूमती पैकेज ना मिला तो एयरलाइन बंद हो जाएगी। कंपनी ने पैकेज के बदले ज़ाती जजीरा गारंटी के तौर पर देने की भी पेशकश की है। जजीरे की मालियत 80 मिलियन पाउंड है। सर रिचर्ड वार्डन आइसलैंड जजीरे के मालिक हैं और वहाँ अपनी अहलिया के साथ रहते हैं। सर रिचर्ड का कहना है कि अमले ने एयरलाइन को बचाने के लिए रजाकाराना तौर पर तनख्वाहों में कटौती कबूल की है क्योंकि एयरलाइन के 85% तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर का फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता है। इन दिनों दूसरे ममालिक का आना जाना खासा दुश्वार हो चुका है जिसकी वजह से दूसरे ममालिक में फंसे हुए शहरी सख्त परेशान है। ताहम पाकिस्तानी सिफारत खाने की कोशिशों से फ़्लाइट पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। तफसीलात वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस जहां दुनिया भर के ममालिक मुआशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं, वहीं एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर भी अब आसान नहीं रहा। फजाई ऑपरेशन मुअत्तल हो चुके हैं। जो जिस जगह फंस गया वहीं मौजूद है और वापसी का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका में भी सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी फजाई सर्विस मुनक़ता होने के बायस फंसे हुए हैं। बार बार पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसल खाने से रब्ते के बाद अब उनकी सुनवाई हो चुकी है और 28 तारीख को कतर एयरलाइन से पाकिस्तानी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड सिचुएशन में अमेरिका में फंसे हुए हैं उनका व्यूज़ और उनके स्टेटमेंट जानने की कोशिश की। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी कोरोना वायरस की वजह से स्टैंडर्ड सिचुएशन में अमेरिका में फंसे हुए हैं और उनके लिए हमारी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो एम्बेसी वाशिंगटन DC में मौजूद है
हमारे एम्बेसडर डॉक्टर असद मजीद खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान सिख काउंसिल की तरफ से और सिख बरादरी की जानिब से, और बहैसियत एक पाकिस्तानी के मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि ऐसी मुश्किल की इस घड़ी में जितने पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो हमारी एम्बेसीज का स्टाफ है, हमारी पाकिस्तानी कौंसलेट जो काम कर रही हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी और कौंसल खाने इन दिनों जो काम कर रहे हैं, अगर इनका दायरा कार बढ़ा दिया जाए तो इससे फंसे हुए तमाम पाकिस्तानी शहरियों की मुश्किलात का अजाला हो सकता है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1000 से ज़्यादा मरीजों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 6 मरीज कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के वार तेज़ी के साथ जारी हैं। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा 1147 नए मरीजों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 11,631 हो चुकी है, जबकि 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 109 तक पहुँच गई। वजारत सेहत के तर्जमान का कहना है कि इस वक्त कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, जबकि दूसरा नंबर दारुल हुकूमत रियाज का है। दूसरी जानिब रमजान की आमद पर मार्केटों में निगरानी का निजाम इंतहाई सख्त कर दिया गया ताकि मुनाफाखोर शहरियों को परेशान न कर सकें। मदीना मुनव्वरा में टमाटरों का जखीरा करने पर पुलिस ने एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार कर लिया। महकमा अमन आमा ने आज से तमाम साबका कर्फ्यू पास मनसूख करने का ऐलान किया है। हुकाम के मुताबिक आइंदा से शहरियों को यकसा सेंट्रलाइज्ड पास फराहम किए जाएंगे, जिन्हें कर्फ्यू के दौरान आमद-ओ-रफ्त की इजाजत होगी। कोरोना वायरस के बायस पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि जद्दा समेत मुल्क के 9 शहरों में 24 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल में सऊदी अरब को शामिल न करके 27 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को मायूस किया गया है। उमैर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुकीम सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी तबके की जानिब से ऑनलाइन इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना वायरस की वबा के बाद तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरुका का कहना था कि इस वक्त सऊदी अरब में 75 पाकिस्तानियों की मैयतें मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान नहीं भिजवाया जा सका, जबकि 15,000 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो विजिट वीजों पर यहाँ मौजूद थे जो वापस नहीं जा सके। हजारों की तादाद में वर्कर्स भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मावन खसूसी जुल्फी बुखारी को चाहिए कि वो यूरोपीय ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स को रिलीफ देने के साथ साथ सब्ज पासपोर्ट रखने वाले लाखों पाकिस्तानियों को भी वतन वापस ले जाने के हवाले से इकदामात करें। ऑनलाइन इजलास से खालिद अकरम राना, राना अब्दुल राउफ, डॉक्टर मुजम्मिल, एहसन अब्बासी, जाहिद लतीफ़ संधू और दीगर ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को मुश्किल की घड़ी में रिलीफ देने की ज़रूरत है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में तबलीगी कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से कोरोना की वजह से तकलीफ का शिकार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इमदाद और दिलजोई का सिलसिला जारी है। घरों में मुक़ीद पाकिस्तानियों को राशन फराहम किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ भट्ट। तुर्की में रहने वाले 40,000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। इस्तांबुल, अंकारा और दीगर इलाकों में मौजूद पाकिस्तानियों की इमदाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में तबलीगी कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के रुकन भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। तुर्की में दावत इस्लामी के निगरान शहाबुद्दीन अतारी ने मुतासरीन की सूरत हाल और दावत इस्लामी की कोशिशों से आगाह किया। उन्होंने मुखिर हज़रात से अपील की कि वह ज़रूरतमंद पाकिस्तानियों की मदद के लिए दिल खोल कर एहतियात दें। दावत इस्लामी इनके हकदारों तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। जैसे ही ये खबर आम हुई और कि यहाँ इस तरह से खैरखाई का सिलसिला जारी है और यूँ मदद की जा रही है, एक बहुत बड़ी तादाद आशिकान रसूल की, मुसलमानों की जो परेशान हाल है, उन्होंने हमारे ज़िम्मेदारान से रब्ता किया, फैज़ान मदीना रब्ता किया और वो हमें ये कह रहे हैं कि आप हमारी भी मदद करें। हम यानी खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम यानी रात को भूखे सोए और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब मैसेजेस दिल हिला देने वाले कि जो सही बात है कि आदमी सुने तो उसके आंसू ना रुके। तो मैं बिलखुसूस जो मुखय्यर हज़रात हैं जो तुर्की इस्तांबुल में हैं, मैं उनसे ख़ास तौर पर ये अर्ज़ करूँगा कि वो यहाँ हमारी
مدد کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول تک، مستحقین تک ہم یہ امداد پہنچا سکیں۔ استنبول میں دعوت اسلامی کے ذمہ دار مشکل میں پھنسے اوورسیز پاکستانیوں کی ہر ممکن امداد میں مصروف ہیں۔ انہیں گھروں میں جا کر راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ مسلمان عاشقان رسول، ہماری پاکستانی کمیونٹی پریشان ہیں کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، مہینوں سے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اور ایسے سفید پوش فیملیز ہیں جو کہ جن کا ہم نام بھی ضائع نہیں کر سکتے، وہ بھی پریشان ہیں، ان کی بھی ہم مدد کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، کم و بیش 15 دن سے ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم سینکڑوں لوگوں تک راشن پہنچا چکے ہیں۔ آج پھر یہ راشن ہمارے پاس ہے، ابھی یہاں پہ پیکنگ کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ راشن آج ہم پھر تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ استنبول اور دیگر شہروں میں پھنسے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کے لیے پاکستانی سفارتخانہ اور کونسلیٹ بھی پیش ہے۔ سفارتخانے اور کونسلیٹ کے عملے کی جانب سے انہیں ہر ممکن امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جی میں آج ترکی کے شہر استنبول میں دعوت اسلامی کے مرکز میں موجود ہوں۔ گزشتہ دنوں بھی دعوت اسلامی نے مستحق افراد کے لیے راشن کا انتظام کیا تھا، آج بھی انہوں نے مستحق افراد کے لیے راشن کا انتظام کیا ہے۔ جب ہم نے دعوت اسلامی سے جاننے کی کوشش کی، ان کا کہنا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم جس حد تک ہو سکتا ہے پاکستانی جو مستحق افراد کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں ساتھ ایک لوگوں کو مہیا کو یہ میسج بھی کریں گے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر، رمضان بھی آ رہا ہے، ہماری مدد کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا کے شہر سینٹ البرٹ کے سٹی کونسل نے کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے ریکوری پلان تیار کر لیا۔ سینٹ البرٹ سٹی کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ ابھی کورونا کے حملے جاری ہیں، تاہم انہوں نے کورونا سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران کے حوالے سے جامع پلان تیار کر لیا ہے، جس میں مختلف شعبوں کی بحالی کے لیے زبردست حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ سٹی کونسل کا کہنا ہے کہ ایسا نظام لائیں گے کہ پورے کینیڈا میں اس کی مثالیں دی جائیں گی۔ سٹی البرٹ کونسل نے رمضان المبارک کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی جاری کی ہے، جس میں مسلمان کمیونٹی سے عبادات کے دوران سماجی فاصلے برقرار رکھنے کی درخواست کی گئی ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں حکام نے اسکولوں میں تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ برٹش کولمبیا کی چیف میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بونی بینری کا کہنا ہے کہ کلاسوں کے دوبارہ اجرا کے لیے اسکولوں میں متبادل دنوں کی پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں والدین، اساتذہ سمیت تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر رہے ہیں۔ بڑے بچوں کے لیے ورچوئل کلاسز جاری رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں واپس لایا جائے گا تاکہ ان کے والدین دوبارہ اپنے کام کاج پر جا سکیں۔ ڈاکٹر ہینری کا کہنا تھا کہ بچوں اور اساتذہ کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں میں سوشل ڈسٹینس سمیت تمام حفاظتی اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے کورونا وائرس کے شکار لوگوں کے لیے امدادی پیکج میں مزید اضافہ کرنے پر غور شروع کر دیا۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب، بے سہارا، معذور، بے گھر اور معمر افراد کی زندگیاں شدید مشکلات میں گھری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت ایسے افراد کے لیے مزید مالی مراعات متعارف کرانا چاہتی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کورونا سے نمٹنے کے لیے سرگرم عمل اداروں سے منسلک افراد کے لیے بھی خصوصی پیکج لایا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے کاروباری اداروں کے لیے سبسڈی کا اعلان بھی متوقع ہے۔ نئے پیکج کا اعلان آج کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ بلٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔